Silas Marner by George Eliot. Silas Marner is a novel by George Eliot, which is the pen name of Mary Evans. She was born in 1819 and a writer of Victorian era. Her writing style is about psychological insight of the characters, and she uses long lines and sentences and often uses dragging in her sentences to explain a single incident or idea. Let's see the introduction of the novel Silas Marner. This is the shortest of Eliot's novels. It is about a weaver of Revellow, which is a village. A weaver is a person who makes fabric by weaving fiber together and uses a loom that holds the thread tightly. So basically weaver का एक कपड़े से काम होता है. So first of all, we will see the summary of the whole novel in general. Then we will move towards the specific chapters. So the novel is set in early 19th century. You can create the scenario in your mind about the early 19th century. The protagonist of the novel was Silas Marner. He was a weaver in Lantern Yard, which is a place in northern England. So in the beginning of the novel, there is some brief history of Silas, that how his life was in Lantern Yard. He was accused of stealing congregation funds while watching the ill deacon. He was watching the ill deacon. He was sitting beside him. उसकी ड्यूटी लगी थी कि वो उसका ख्याल रखे, जबकि वहाँ पे उसके ऊपर ये इल्ज़ाम इस वजह से लग गया क्योंकि वो वहाँ मौजूद था कि उसने जो कॉन्ग्रीगेशन फ़ंड है वो उसने चोरी किए हैं. बिकॉज हिज पॉकेट नाइफ वॉज फाउंड देयर, और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो बैग, मनी बैग उसके हाउस में मिला. His friend William Dame was actually responsible for that, but उसने साइलस को इस थेफ्ट के लिए फ्रेम कर दिया. Lots were drawn. एक ये होती है क्रिश्चियंस की एक तरीका होता है पता लगाने का कि who was the thief. जब वो किया गया तो साइलस was found guilty. His fiancée ने भी उससे ब्रेकअप कर दिया और उसके फ्रेंड विलियम जेम्स से शादी कर ली. So, heartbroken, he moves to Revellow village. There he lives isolated as a linen weaver. And ये यहाँ पे उसकी brief history ख़त्म होती है और उसकी life in Revellow start होती है. Being alone in Revellow, किसी से वो बात नहीं करता, ना मिलता है. So he starts to develop his love for money. जो वो earn करता है अपनी weaving से, उससे उसको उसी के लिए वो ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है. One day, Dunstan Cass, जो Squire's younger son, steals gold bag from Silas' house and disappears. Usually Dunstan Cass इस novel में एक loathsome character है, you can say, और villain भी कह सकते हैं उसको. वो साइलस के घर जाता है और उसके वहाँ जितने भी पैसे के बैग्स पड़े होते हैं वो सारे चुरा लेता है. जब साइरस को इस बारे में पता चलता है तो ही सिंक्स इनटू डिप्रेशन बिकॉज हिज ओनली लव वाज हिज मनी, और जब वो उसे छीन जाता है तो वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है. Then there is another character in the story who is Godfrey Cass. He is also Squire's son. He is the elder son of Squire Cass. There is a general talk about his story that he is actually married to an affair-addicted woman who has an ill repute in the society, Molly Farron. जिसकी वजह से वो एक अच्छी फैमिली की लड़की who is Nancy Lammeter उससे शादी नहीं कर पाता है और उसकी शादी में रुकावट आ रही होती है because he is also guilty of his first marriage. फिर स्टोरी में कहाँ से ट्विस्ट आता है. One night Molly Farron decides to announce herself and her daughter at Godfrey's New Year's Eve party.
ये पार्टी बहुत ही चेंजिंग पॉइंट है नावल के अंदर। मॉली जो है वो डिसाइड करती है कि वो अपनी और अपने बारे में और अपनी बेटी के बारे में सबके सामने बता देगी गॉडफ्रे की हकीकत। बट अनफॉर्चुनेटली शी डाइज़ इन द स्नो। रास्ते में आते हुए ही वो मर जाती हैं और उसके हाथ में जो चाइल्ड होता है, उसकी बेटी होती है, शी स्लिप्स अवे फ्रॉम हर हैंड्स एंड वॉन्डर्स इनटू साइलस's हाउस। जब साइलस को इस बारे में पता चलता है तो वो वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसे पता चलता है कि एक वुमेन वहाँ मरी हुई है। वो जाता है, ही इन्फॉर्म्स एवरीवन एट द पार्टी, और गॉडफ्रे को जब पता चलता है कि ये मॉली है और उसकी बेटी है तो वो मैटर अपने हाथ में ले लेता है। फिर आगे से साइलस स्टार्ट्स टू कीप दैट चाइल्ड विद हिम। उसका नाम वो एपी रखता है। एपी के आने की वजह से साइलस के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सो अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नावल इज़ एपी, जिसकी वजह से साइलस की लाइफ में ढेर सारी चेंजेस आती हैं और उसकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाती है। इतनी देर गॉडफ्रे, बिकॉज उसका अब सीक्रेट कोई नहीं रहा जो एक्सपोज कर सके, तो ही मैरीज नैन्सी लैमिटर। 16 years pass and Silas becomes more accepted into society. वो रेवलो के लिए, उसको रेवलो में रहने की आदत हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है। एबी के साथ वो खुशी खुशी सोसाइटी में रह रहा होता है। वन डे अनदर प्लॉट ट्विस्ट नावल में कब आता है, जब डंस्टन कैस का स्केल्टन आफ्टर मैनी ईयर्स इज़ डिस्कवर्ड एंड रिकवर्ड फ्रॉम अ क्वारी विद गोल्ड। जब ये सामने आता है तो गॉडफ्रे टेल्स ऑल हिज सीक्रेट टू नैन्सी, कि उसकी शादी हुई थी, उसकी बेटी थी और इस बारे में, एंड उनकी कोई दोनों की औलाद भी नहीं थी, इसलिए ही वांट्स एपी बैक इन हिज लाइफ। ही वांट्स टू अडॉप्ट एपी नाउ। बट सिंस एपी अब साइलस को पसंद करती है, शुरू से उसे ही उसने अपना गार्डियन माना है, तो शी रिफ्यूज़ेस because she is happy with her life with Silas. Then Abby marries local boy Aaron and they live happily with Silas in a renovated house with Godfrey's help. Godfrey सब कुछ बताने के बाद हकीकत एक्सेप्ट करता है कि Abby doesn't want to live with him, तो इसलिए वो बस उनको मैंने फाइनेंशियली हेल्प करता है, उनके लिए घर रेनोवेट वगैरह करा देता है, और एपी देन लिव्स हैप्पीली विद साइलस एंड एरन इनटू देयर होम। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी साइलस मार्नर। दिस इज़ द जनरल जिस्ट एंड द समरी ऑफ द नॉवल. We will move on further on specific chapters starting from chapter 1 in our next videos. Please sure to watch my next videos too and subscribe my channel.